بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، برائٹ اینگل کے ساتھ بیرسٹر احتشام امیرالدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت ساری انفارمیشن ہے میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، خاص طور پر میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز، میاں سلمان شہباز کے حوالے سے نیب کی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کل جو نیب کا کال اپ نوٹس کیا ہے نصرت شہباز صاحبہ کو، ان کی بیٹیوں کو، اس حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب نے کیا کہا نیب اور نیازی گٹس جوڑ کے حوالے سے۔ سنیے۔ میری بیمار والدہ جو اپنا جو ہے وہ ملٹیپل ان کو اپنا جو ہے وہ تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو صحت دے، ان کو بھی کال اپ نوٹس آج ہی آ گیا ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بالکل اگر والدہ ان کی بیمار ہیں، ہماری تمام تر دعائیں اور ہمدردیاں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیمار ہیں اور وہ نیب کے دفتر میں نہیں جا سکتی ہیں، جو بھی نیب نے ان کو ایگزامن کرنا ہے، سوال پوچھنے ہیں، تو نیب کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کو خود گھر آ کر ان سے سوالات کرنے چاہیے if she is not in a position to travel and visit the نیب پریمیسز۔ یہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں۔ لیکن جو کال اپ نوٹس آیا ہے جس کے حوالے سے حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں آیا ہے، اس کی میں کچھ وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے اپنی اہلیہ نصرت شہباز کو کروڑوں روپے کی مالیت کے اثاثے تحفے میں دیے۔ شہباز شریف نے اپنی اہلیہ کو 5,57,72,000 کی رقم تحفے میں دی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے یہ رقم 2013 سے 2018 کے درمیان مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے منتقل کی گئی۔ نصرت شہباز 12 کمپنیوں میں 69,56,500 شیئرز کی مالکن ہیں۔ 96H ماڈل ٹاؤن اور مری کی رہائش گاہیں نصرت شہباز کے نام ہیں، اور نصرت شہباز کے نام قصور اور فیروز والا میں 810 کنال قیمتی زمین بھی ہے۔ اور اب میں آپ کو سکرین پر کال اپ نوٹس دکھاتا ہوں، پروڈیوسر صاحب یہ دکھائیے گا۔ اگر آپ اس کال اپ نوٹس کو دیکھیے تو یہ سیکشن 19 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا، جس کے تحت نصرت شہباز صاحبہ کو، ان کی ایک بیٹی جو ہے جویریہ علی ان کو، اور ان کی دوسری بیٹی جو ہے رابعہ عمران، ان تینوں کو یہ کال اپ نوٹس کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھیے، یہ سیکشن 19 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا، جس کے تحت ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس تفصیلات ہیں، جو بھی آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہیں کہ باہر سے جو فورن ریمیٹنسز آئی ہیں، جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا ہے، آپ کو ریسیو ہوا ہے، آپ وہ ہمیں اس کی انفارمیشن دے دیجئے۔ اس کے علاوہ ان کال اپ نوٹسز میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ جو سورسز آف فنڈز ہے جس سے آپ کے ایسٹس بنے ہیں 2008 سے لے کے 2017 تک، اس کی تفصیلات ہمیں دے دیجئے۔ اس کے علاوہ کمپنیز میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی طرف سے بطور ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر، اس کی تفصیلات دے دیجئے۔ گفٹس اور سیلریز اگر آپ نے کوئی ریسیو کیے ہیں تو اس کی تفصیلات دے دیجئے۔ اور اس کے علاوہ 96H ماڈل ٹاؤن اور 87H ماڈل ٹاؤن لاہور اور نشاط لاج ڈونگا گلی، یہ جو 3 پراپرٹیز ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی منی ٹریل ہے یا سورسز جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کال اپ نوٹس میں آپ کی خدمت میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق انویسٹیگیشن اس وقت نصرت شہباز کے خلاف نہیں ہو رہی یا ان کی بیٹیوں کے خلاف نہیں ہو رہی، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے حمزہ شہباز کے خلاف، سلمان شہباز کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف۔ لیکن کیونکہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں، لہٰذا ان کو کال اپ کیا جا رہا ہے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، ایگزامن کرنے کے لیے کہ جو بھی آپ کے پاس تفصیلات ہیں وہ ہمیں دیجئے، تاکہ اس کی روشنی میں انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سیکشن 19 نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا جو قانون ہے، دکھائیے گا جی اسکرین پہ۔ یہ قانون یہ کہتا ہے سیکشن 19 کے جو چیئرمین نیب ہیں وہ پوری طرح سے آتھرائزڈ ہیں، یا کسی بھی آفیسر کو بھی وہ آتھرائز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انویسٹیگیشن یا انکوائری چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے وہ کسی بھی شخص سے انفارمیشن کال کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ان سے کوئی ڈاکیومنٹس ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی بندے کو ایگزامن کر سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی ادارے سے، جیسے کہ کوئی بینکنگ ادارہ ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ان سے کوئی ڈاکیومنٹس وغیرہ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے ساری کی ساری قانون کے پیرامیٹرز کے اندر ہوئی ہے، ویل ڈیفائنڈ پیرامیٹرز کے اندر ہوئی ہے۔ جس طرح سے کل پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہا گیا کہ نیب کی ٹیم گئی اور وہاں پر کیوں گئی اور کسی کی بہن بیٹیوں کے اس طرح سے طلب کیا جاتا ہے، تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی ایسے
کام کیے جائیں گے جس سے قانون شکنی ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں آ کے آپ کو کال اپ نوٹسز دیں گے اس حوالے سے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے, انکوائری کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے, تفتیش کے لیے, آپ کا جرم ثابت کرنے کے لیے, تو پھر آپ یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اور بہن بیٹیوں کی بات آپ جو کر رہے ہیں یقیناً ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے, احترام ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم the law has to take its course. اور کوئی بھی غیر قانونی اگر حرکت اس میں نیب کے حوالے سے مجھے نظر آتی تو میں ضرور آئیڈینٹیفائی کرتا, میں 100% آئیڈینٹیفائی کرتا. میں نے تو تب بھی یہ کہا تھا چیئرمین نیب کے حوالے سے. ایک دفعہ مجھے ایک بچہ نظر آیا گاڑی میں جاتے ہوئے, اس کے پیچھے بڑا پروٹوکول تھا. میں نے لائیو شو میں کہہ دیا کہ وہ بچہ ایک کلیم کر رہا تھا کہ میں چیئرمین نیب کا بھتیجا ہوں, جس کی تردید چیئرمین نیب نے کی اس ٹائم پر. تو اگر اس سارے پروسیس میں مجھے کسی قسم کی کوئی irregularity یا illegality نظر آتی تو میں ضرور اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا, لیکن مجھے اس میں کوئی illegality نظر نہیں آ رہی. لیکن اب میں آپ کو حمزہ شہباز صاحب کا ایک اور شارٹ دکھاتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے چکروں میں تھا. نیب کے جو ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہے انہوں نے کہا کہ ڈگری کے حوالے سے جو قرارداد پنجاب اسمبلی میں آپ نے میرے خلاف جعلی ڈگری کی ہے اس کو واپس لے لے تو آپ کو کال اپ نوٹس نہیں آئے گا, اور حکومت کے ساتھ ڈیل کر لے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. ہم پہ بڑا پریشر ہے. حمزہ شہباز کیا کہہ رہے ہیں سنیں. ہم آپ کو بلا کر جہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آ رہے تھے, آپ اپنا جو ہے آپ کے والد نے بڑا کام کیا ہے, آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے, ہماری جان چھڑائیں, آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر, مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں, میں بڑا انڈر پریشر ہوں اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے. اچھا, اس کے جواب میں نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کل, یعنی کہ 13 اپریل 2018 کو, اور اس پریس ریلیز میں نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں. آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں, ویسے یہ ٹائپڈ نہیں ہے اور یہ ہینڈ ریٹن ہے, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سرکاری سکول کے ہیڈ ماسٹر نے یہ تحریر لکھی ہے, لیکن بہرحال یہ نیب کی طرف سے ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ ہم اس بات کی سختی سے تردید اور مذمت کرتے ہوئے کہ ڈی جی نیب لاہور نے اپنی ڈگری کے بارے میں حمزہ شہباز سے کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر انہوں نے ایسی بات کی تھی تو حمزہ شہباز اس وقت کیوں خاموش تھے جب یہ بات کی گئی تھی, اور اس وقت کیوں وہ خاموش رہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. جہاں تک ڈی جی نیب کی ڈگری کا تعلق ہے تو ایچ ای سی پہلے ہی اس کی تصدیق کر چکی ہے اور اس کی رپورٹ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جا چکی ہے. شریف فیملی کی خواتین کو بلانے کا مقصد دراصل اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ویورز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ نیب نے اس وقت جو شریف فیملی کی خواتین کو طلب کیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, یہ جعلی اکاؤنٹس آپ کہہ لیجئے, یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاص طور پہ, اس میں اس وجہ سے کیا کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر نیب کو ایک شکایت وصول ہوئی ہے, اور اس شکایت کی روشنی میں تحقیقات کرنا نیب کی قانونی طور پر ذمہ داری ہے. بہرحال یہ تو تھی قانون کی بات جس کے حوالے سے حمزہ شہباز صاحب کو بہت دکھ تھا. اب میں آپ کو ان کا ایک شارٹ دکھاتا ہوں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر آئی کہ میری بہن کے گھر کا گھیراؤ کیا, کسی کی بہن بیٹی کو ایسے نوٹس دیتے ہیں, یہ بھی سن. مجھے خبر آئی کہ جی میری 2 بہنوں کو بھی نوٹس آ گئے ہیں, رابعہ شہباز شریف کو اور جویریہ شہباز شریف کو. مجھے میری بہن کا فون آیا کہ حمزہ بھائی اس طرح نیب کی اور پولیس کی ٹیم ہمارے گھر کے آگے پیچھے گھیرا کیا ہوا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, کیا معاملہ ہے؟ کیا مجھے بتائیں کہ مہذب معاشروں میں کسی کی بیٹی کو اس طرح نوٹس جاری کیے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتا. مہذب معاشروں میں اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالا جائے, لیکن اگر نیب کال اپ نوٹس جو ہے وہ دے رہی ہے تو میرے خیال میں یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنے کے مترادف نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر نصرت شہباز صاحبہ بیمار ہیں تو نیب کو ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. نیب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے دفتر میں آ کر پیش ہوں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں. انویسٹیگیٹنگ آفیسر خود چل کے نصرت شہباز صاحبہ کے پاس جائے اور ان سے سوال پوچھے, اور جو لوگ وہاں پر پیش ہو سکتے ہیں قانون کے مطابق ان کو وہاں پر ضرور پیش ہونا چاہیے. لیکن جب بہن بیٹی کی عزت کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اور بہن کسی کی بیٹی اور بھی ہے ایک, جس نے بڑے واویلے کیے ان کے دور حکومت میں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, میری عزت کو اچھالا جا رہا ہے, میرے خاندان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے, میری فیملی پہ جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں, میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد انکار کر دیا گیا کہ شادی نہیں ہوئی. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہ سنیے. یہ کہاں کے حاکم ہے جو اپنے گھر کی عزت نہیں سنبھال سکتے, پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوں. بالکل جھوٹ بولتا ہے, یہ کسی قانون کو نہیں مانتا, یہ کسی انصاف کو نہیں مانتے. یہ شادی حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی. میرے پاس بھی میسیجز ہیں, سب کے ہیں, بہت سے لوگوں کے ہیں ان کے گھر کے.
मुझे इंसाफ चाहिए। और जब किसी की बहन, किसी की ये बेटी सड़क बाहर निकली, मीडिया के सामने भी आई अपना हक लेने के लिए, तो फिर बकौल इसके इसको पार्टी वर्कर से पिटवाया भी गया। ये भी सुन लें। ये अफसोस जरूर है कि वजीर आजम पे और मियां नवाज शरीफ साहब पे और मियां शहबाज शरीफ साहब पे उसके मैसेज का कहने दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी और अपने घर की जो बहू थी जो सड़कों पे जिसको औरतों से मरवाया अपनी पार्टी के वर्कर्स से, आज उसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। जी, और किसी की बहन बेटी के बकौल उससे झूठ बोलकर उससे शादी की गई और मजीद उसके साथ क्या जुल्म किया गया ये भी सुन लीजिए। नहीं है, ये अमीन नहीं है, इसने झूठ बोल के मुझसे शादी की। इसने कहा कि मैं महरुनिसा को तलाक दे चुका हूँ, मेरे पास वो सबूत है। मैं आती थी, मैं कहती थी अंकल प्लीज बाहर निकले, मियां नवाज शरीफ साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मेरी और मेरे खानदान के साथ क्या किया जा रहा है, मुझे दहशतगर्द बना दिया, मेरी बच्ची को दहशतगर्द बना दिया। आज उसी गेट के बाद आज अल्लाह ने 7 साल बाद आपको खड़ा किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरा सबर पड़े, मेरा सबर पड़ेगा। जी, आपने सुना, बकौल आयशा आहद उनके ऊपर 365A का झूठा मुकदमा बनाया गया। बकौल आयशा आहद उनके मुलाजमों के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी वालदा के ऊपर झूठे मुकदमात नैब के बनाए गए। नैब ने इन लोगों को तलब भी किया, इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद इनकी जमानतें भी हुई। बकौल आयशा आहद इनकी वालदा का नाम ECL में डाला गया और मरते दम तक उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका नाम ECL से बाहर निकल जाए, लेकिन उनका नाम ECL से बाहर नहीं निकल सका। और जब वो उनकी वफात हुई तो उनका नाम उस वक्त भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था। ये आयशा आहद का मौकिफ है जो कि मेरी नजर से गुजरा है और मैं समझता था क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बहन बेटी की इज्जत की बात की है और महजब माशरे की बात की है, तो जब खुद बंदा हुक्मरानी में हो और हुकूमत कर रहा हो तो फिर ये बातों की जिम्मेदारी और ज्यादा होती है और आपने ज्यादा ख्याल रखना होता है। तो पता नहीं, शायद आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स अबाउट दैट, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी की बहन बेटी के साथ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, उन्होंने जो अवामी खिदमत की थी 184(3) आर्टिकल 184(3) में, उसमें अवामी खिदमत में एक ये भी सेहरा उनके सर जाता है कि वो कहते हैं कि इस नंबर से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि मेरी और मेरी बेटी को जान को खतरा है। उनके स्टाफ ने राब्ता किया, पता लगा ये आयशा आहद है और उसके बाद इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो किसी की बहन, किसी की बेटी जो है वो बहुत मुश्किल हालात में से गुजरती रही है आपके दौरे हुकूमत में। हमजा शहबाज साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करें। वेलकम बैक टू राइट एंगल। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये नैब और न्याजी का गठजोड़ है और DG नैब के हवाले से भी उन्होंने एलिगेशंस वगैरह उठाए, तो आप समझते हैं कि इज दिस द राइट वे टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑनगोइंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ नैब जिसमें करोड़ों रुपए के इल्जामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हमजा शहबाज शरीफ साहब, या फिर तफसीलात कॉपरेट करें, आपके पास सोर्सेज हैं, मनी ट्रेल हैं, आप वो दे दीजिए। देखिए, नैब की एक हिस्ट्री है। अगर हमें कोई भी मामला, किसी भी मामले को हमने देखना हो तो हमें उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको जरूर देखना चाहिए। जी जी। नैब की हिस्ट्री ये है कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इसलिए बनाई गई ताकि सियासतदानों को खरीदा जा सके और काफ लीग एक उनकी पार्टी थी जो जिसको वो सपोर्ट करते थे, उसमें लाया जा सके और फिर काफ लीग की हुकूमत बनाई जाए। और फिर जब काफ लीग की हुकूमत बन गई, फिर जो कुछ हुआ इस मुल्क में वो सारी दुनिया को पता है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो ये एक बेसिकली टूल है, पॉलिटिकल टूल है नैब, जिसको इस्तेमाल किया जाता है सियासतदानों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए। और हमें था उम्मीद कि शायद कहते हैं मामला जैसे जैसे आगे जाएंगे शायद बेहतर होते जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी हिस्ट्री को बार बार दोहराते ही रहे। अच्छा, आप ये समझते हैं डॉक्टर साहब कि मुकम्मल तौर पर ये है ही एक टूल जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इस कानून में कुछ ना कुछ तो अफादियत होगी? पाकिस्तान का नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में टॉप 5, टॉप 3 कंट्रीज में आता रहा है करप्शन में। हमारे पटवार खाने में, हमारे थाने में, हमारे दीगर सरकारी महकमों में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता रहा। सरकारी अफसरान के हवाले से आपको याद होगा, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन बलोचिस्तान के जो सेक्रेटरी
मिनिस्ट्री फाइनेंस थे, उनके घर से 70-80 करोड़ रुपया कैश में बरामद हुआ था और अभी तक उस ट्रायल का क्या बन रहा है हमें नहीं पता। और बहुत सारी ऐसी चीजें बाद में हमें पता लगता है कि जी बाद में वो प्ली बार्गेन हो गई और वो प्ली बार्गेन असल अमाउंट की बहुत थोड़ी अमाउंट पे होगी, तो सरकारी खजाने को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता रहे। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर इस कानून की अफादियत भी है और ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता? देखें, ये जो आपने अभी बात की ना 70 करोड़ रुपए की जो बलूचिस्तान में मिला है, जी जी, ये हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये आज भी माल बना रही है। पटवार खाना आज भी माल बना रहा है, पुलिस आज भी माल बना रही है। तो फिर नैब का कानून तो ठीक है ना, होना चाहिए। देखिए मेरी गुजारिश सुने, देखिए नैब ने, मैं आपको एक नहीं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ जी जी, कि अरबों रुपए इस मुल्क से बाहर जो है वो लेके गए। यही जो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हमारी, इसने लेके गए। आज भी 100 अरब रुपए की असामियां बैठी हुई है इस मुल्क में, सरकारी तनख्वाह ले हैं सारी जिंदगी, और जब रिटायर हुए तो 100 अरब रुपए। तो सर आप अपने आर्ग्यूमेंट की नफी खुद ही कर रहे हैं ना। अब आप खुद कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नैब का कानून काला कानून है। बैरिस्टर साहब, अगर नैब अपना काम करे तो उसको सब मानेंगे। मामला ये है कि नैब अपना काम ही नहीं करती। नैब पॉलिटिकल टूल के तौर पे फ्रॉम डे वन इस्तेमाल हो रही है और आज भी बन रही है। अच्छा चले, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बेसिकली ये डॉक्टर अफनान साहब, आई कम बैक टू यू। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किए। फिरदौस साहबा, सबसे पहले तो एक शॉर्ट कमेंट इस बात पे कर दीजिए, जो नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, ये केस वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और अब तो इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट उस दिन आया कि हमारे दौरे हुकूमत में पहली दफा हम एक और कुछ और रेफरेंसेस 29 के करीब दायर करने जा रहे हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब जो है वो ना पीटीआई का बनाया इदारा है और ना नैब जो है जितने भी इसके अंदर अब तक इंक्वायरीज हैं या ओवरऑल इन्वेस्टिगेशंस हैं जी, अभी तक पीटीआई ने किसी के खिलाफ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया डायरेक्टली। आपने अगर हमजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उसमें आपको ये मिल गई होगी लीड स्टोरी। तो वो कह रहे हैं कि केस तो पुराने चल रहे थे तो अब उसमें तेजी क्यों आ गई है। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उनके जुमले रिपीट कराएं तो उनमें आपने ये सुन लिया होगा कि भाई केस तो हमारे पुराने थे, अब उनमें अचानक तेजी क्यों आ गई है जी। देखिए, आपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जब मनपसंद अफराद, गिरोह और ऐसी सोच रखने वाले शख्सियात मौजूद रखेंगे जो मुल्क की बजाय शख्सियात का मफाद देखेंगे जी, जो मुल्क के मफाद को दाव पे लगाएंगे, तो वो चीजें डिले करेंगे, डेफर करेंगे, और यही होता रहा साहब। यानी कि नैब की जितनी भी कार्रवाई है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपके? बिल्कुल नहीं है जी। अब मुझे ये बताइए कि नईम बुखारी साहब को नैब ने क्यों फिर एंगेज किया? नईम बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव मेंबर हैं और इस वक्त नैब के केसेस में वो लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ उनकी जमानतों की मनसूखी के लिए। उनको क्यों एंगेज किया गया? देखिए, एप्लीकेशन दे आपके पास रेलिवेंट कोई प्रूफ है तो लेके आए और उनके सामने रखें। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के खिलाफ सबूत हो, एप्लीकेंट मौजूद हो, मदई मौजूद हो तो नैब उस पर कार्रवाई ना करे। मीडिया आजाद है आपके। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही फिरदौस साहिबा, मुझे ये समझाइएगा कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, नैब इंडिपेंडेंट है, नैब का अपना एक प्रोसिक्यूटर जनरल है, उसके नीचे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, उसके नीचे बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, और जहां जहां पे बड़े शहरों में नैब के दफातर हैं वहां पे वो सब अपना काम कर रहे हैं और बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे नैब के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा हैं। तो फिर जब वो तनख्वाहें भी पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा ले रहे हैं, उसके बाद फिर नईम बुखारी साहब को काउंसिल एंगेज करने की, एक प्राइवेट काउंसिल को एंगेज करने की क्या जरूरत पेश आई, जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? फिर मुस्लिम लीग नवाज कहेगी ये देखिए जी नैब न्याजी गठजोड़ है। जी, ऐसा नहीं है। देखें, नैब का ये इस्तेहकाक है कि वो प्राइवेट सेक्टर से किसी को भी अपनी कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए एंगेज कर सकता है, चाहे वो नईम बुखारी हो। क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को 75 करोड़ रुपया जो है वो फीस थी और केस लड़ा उन्होंने। तो ख्वाजा हारिस तो प्राइवेट काउंसिल थे ना, ख्वाजा हारिस का ताल्लुक यही बात मुस्लिम लीग नवाज या पीटीआई या सियासी जमात से नहीं थे कि आपका केस लड़ रहा हो वकील, दूसरी तरफ जो है वो
10-15 लाख वाला वकील खड़ा हो, तो आप कौन ये तो करे कि रिजल्ट मिल जाए। और अच्छा, ये 10-15 लाख वाला वकील आप नईम बुखारी साहब को कह रही हैं? प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, और मैं समझती हूँ कि नैब वालों को कह रही हैं? नैब को अगर अच्छा, उनको कह रही हैं। सोच के मुताबिक नईम बुखारी साहब को एंगेज करते हैं, तो पीटीआई का उनसे पीटीआई ने भी उनको एज अ लीगल एडवाइजर 10-15 लाख वाला वकील किसको कह रही है? मैं कह रही हूँ कि वो कहीं पे भी पीटीआई के ना ऑफिस बेरर है, ना तो एमपी एमएलए है, वो भी पीटीआई 2016 से ही इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहरहाल फिरदौस साहिबा, परवेज एडवोकेट साहब वही अलीम खान के वकील हैं, वही शहबाज शरीफ के वकील हैं। ले दसो कर लो गल। किसी का हो सकता है, उसके ऊपर कोई छाप और ब्रांड तो नहीं होता। अब ये देखे ना, यही बात आपने कर दी। ये कितनी अजीब बात है कि वो अमजद परवेज साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, वो अलीम खान साहब के भी वकील हैं। की कोई जमात नहीं होती, वो केस टू केस क्लाइंट टू। अमजद परवेज इंडिपेंडेंट वकील है, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। नईम बुखारी साहब तो आपके मेंबर हैं। लेकिन चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे पता है कि आप अपने हल्के में बहुत मसरूफ है और मुझे ढोल ढमक्के की आवाज भी आ रही है जलसे वगैरह में किसी में। डॉक्टर अफनान साहब, योर टेक। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अगर कोई मसला नहीं है तो फिर किसी मुस्लिम लीग नून के लॉयर को ना हायर कर ले नैब अपने केसेस चलवाने के लिए। अगर बात तो है, क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा जो बात हमारी चल रही थी मैं उसी के ऊपर आना चाहूंगा। देखें, बात ये है कि कोई करप्शन कोई भी करे वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो सियासतदान हो। लेकिन अगर आप स्पेशल कानून सियासतदानों के लिए बनाएंगे, सियासतदानों को प्रोसिक्यूट करेंगे, आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि स्पेशल कानून सिर्फ अगर सियासतदानों के लिए, ये नैब के कानून का इतलाक सिर्फ सियासतदानों पर नहीं होता है सर, ये ब्यूरोक्रेट्स पर भी होता है, ये फौजी अफसरों पर भी हुआ है। ब्रिगेडियर असद मुनीर की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने खुदकुशी की और आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और मैं आपसे ये अर्ज करूं, आपको याद होगा जो एनआरओ हुआ था, जिस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि बेनिफिशियरीज थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो सियासतदान नहीं थे। तो फिर देखिए मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा इदारा बनाएं जिसके रेमेड में सारे आते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें ना कोई कुछ कहे, और आप बाकी सारे। इससे पता चलता है कि इसके अंदर बदनीयती है, और इस बदनीयती की वजह से ही ना कभी कोई ये लोग बंदे पकड़ पाते हैं, ये सिर्फ लोगों के नाम उछालते हैं, कभी किसी का नाम उछलता है, कभी किसी का नाम उछलता है। और आप अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, जिस इंसान की डीजी नैब की डिग्री जाली हो, अल खैर यूनिवर्सिटी की हो, जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि जाली, नैब का प्रेस रिलीज है आज, वो कहते हैं कि जी एचईसी ने उसकी तस्दीक की और हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। देखिए, एचईसी तो इन्हीं की है ना इस वक्त। एचईसी देखिए, ये तो पूरा मुल्क इस वक्त क्या कहते हैं, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। इनकी एचईसी तो अब आके अगर होगी तो हो गई जनाबे आली। सुप्रीम कोर्ट तो इनकी नहीं है ना। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप चले जाइए हाई कोर्ट में, एक रिट ऑफ क्वो वारंट फाइल कीजिए। अगर वो डिग्री जाली है तो उस बंदे को वो तो केस बनेगा क्रिमिनल। कुछ करना है ना एहतशाम भाई, सारा काम हमने तो नहीं करना ना, किसी ने कुछ और भी तो करना है ना। देखिए, 75,000 जाली डिग्रियां वेरीफाई की है एचईसी ने इस एक बंदे के चक्कर में। तो इससे ये पता चलता है कि इस वक्त इस मुल्क में हो क्या रहा है। इस मुल्क में कोई कानून की अगर अमलदारी होती तो कभी ये वाला काम नहीं हो सकता था। अगर कोई शफाफ मामला चल रहा होता तो कभी ऐसे आदमी को डीजी नैब लाहौर लगाया नहीं। इस मुल्क में कानून की पासदारी होती तो इतनी करप्शन हो सकती थी डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरकारी मुलाजिम को 1.35 अरब रुपए का प्लॉट अलॉट कर दिया है। ठीक है, 1.35 अरब रुपए का प्लॉट अलॉट कर दिया है। ऑल राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। फिरदौस आशिक अमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सानेहा कोयटा की बात करेंगे, जहां पे हालिया दहशतगर्दी की वेव चली है और हजारा कम्युनिटी को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक टू राइट एंगल। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के ऊपर जो खुदकुश बम धमाका हुआ था उसमें 20 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए। उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हजारा कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिस पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये हिस्ट्री देख रहा था कि बामियान में 1880 में हजारा कम्युनिटी पर तब जुल्म सितम और बर्बरियत की एक दास्तान शुरू हुई वहां के बादशाह की तरफ से, और फिर इन्होंने हिजरत की और हिजरत करके अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में और पाकिस्तान बलोचिस्तान कोयटा में आके ये लोग सेटल हो गए। फिर तकरीबन 100 साल तक हजारा कम्युनिटी के जो लोग थे वो अमन से रहे, लेकिन 90 की दिहाई में इनके खिलाफ फिर से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई। किसी ने इनको काफिर कहा, किसी ने इनको शिया का, और फिर मुख्तलिफ जो तंजीमें थी, कलदम तंजीमें जिसमें लश्कर जंगवी और दीगर तंजीमें भी आती, सिपाही साहबा। और अब एक लेटेस्ट खबर के तहत, अमरीकी खबर रसां एजेंसी के तहत ये जो हमला है इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। मेरे साथ अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, सेनेटर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से जिनका ताल्लुक है। इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। काकड़ साहब, क्या तफसीलात है? ये जो हमला हुआ, कुछ अब सामने आई चीजें कि किसकी तरफ से हुआ, इसके क्या मुहर्रकात थे और आइंदा क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये रिसेंटली जैसे आपने खुद अपने बैकग्राउंड में बताया कि हजारा कम्युनिटी स्पेसिफिकली बलूचिस्तान और कोयटा में माजी में भी एक वायलेंट मूवमेंट का शिकार रही है, और ये तंजीमें जिनका आपने तस्करा किया, इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स निकले LRR के नाम से, लश्कर जंगवी, और ये इनकी जो अम्ब्रेला आजकल बन गई है वो सो कॉल्ड दाइश बन गई है। बदकिस्मती से आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हम एक सेंटर स्टेज पर हैं, इंटरनेशनल ऑनस्लॉट है इंटेलिजेंस, जिसमें पर्टिकुलरली इंडियंस और अफगान इंटेलिजेंस दोनों फोर फ्रंट में है इन्वॉल्वमेंट में। बलूचिस्तान में अरमान लूनी के वाक़े के हवाले से अगर आप देखें, उसके साथ एक तवातुर में लोलाई में अटैक्स शुरू हो गए। वो कर्ब होने के बाद जो हमारी सबसे कमजोर फॉल्ट लाइन है वो हजारा कम्युनिटी की है। तो ये एक और लास्ट डिच अटेम्प्ट इन्होंने की और इन दरिंदों ने हमारे लोगों को शहीद किया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें मैं साथ में ये याद दिलाता चलूं कि उनकी भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां इस सेंस में है। कर्नल सोहेल आबिद लास्ट ईयर हमारे शहीद हुए थे इसी दाइश और लश्कर जंगवी के जो आउटफिट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए। उनके और ऐसे सैकड़ों अनसंग हीरोज हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। कर्नल सोहेल आबिद के हवाले से जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया इन बीस्ट्स के खिलाफ लड़ते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक जहां पे मेरे ख्याल में ये इनकी लास्ट डिच्ड अटेम्प्ट थी, आप व्हाट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस के लास्ट थी? क्या ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से? उसमें सर ऐसे है कि जैसे हमारी प्रोविंशियल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो हमारी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकी बड़ी सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स है बलूचिस्तान में। चाहे वो फ्रंटियर कोर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लेविस फोर्स हो, ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम कर रही हैं। जो वहां से असेसमेंट और इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें इनके जो कल्ट लीडर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है। चंद एक रेमिनेंट्स है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ कैंप्स पे उनका डेरा है। ठीक है। अच्छा काकर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे बलूचिस्तान पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहां पर सिर्फ लेवीज काम करती है। तो आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए बलूचिस्तान पुलिस की जो अहाता है या ज्यूरिसडिक्शन है उसको बढ़ाने की जरूरत है? इन प्रिंसिपल आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसको इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए और कन्वर्ट किया जाए पूरे के पूरे सूबे को पुलिस एरिया में। लेकिन आप जानते हैं कि हम एक कोलिशन हुकूमत में हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोगों की प्रायोरिटीज है वो एट टाइम्स इट्स एन हिंड्रेंस। ठीक है। लेकिन अच्छा, मेरे पास के बावजूद कम है। आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता, मैं किसी और वक्त आपको दोबारा दावत दूंगा काकड़ साहब बलूचिस्तान के ऊपर तफसील से बात करने के लिए, बिकॉज समहाउ इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा कोयटा आऊं। आपको पता मैं एक दफा आया था, उस हवाले से आपसे बात भी हुई थी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप बलूचिस्तान का जो वो अच्छी साइड है वो आप हमें दिखाएंगे वहां पे उस हवाले से।
You are more than welcome on the behalf of the government. آپ ضرور آئیں, ہم آپ کو پوری فیسیلیٹیشن دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو شو میں لیں گے, بلوچستان کے اوپر بات کریں گے. ناظرین بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.